Hello dear students, today I am going to teach for class 12th English poetry. English poetry, my first poem, My Mother at 66. Okay dear, My Mother at 66. In which I want to tell the real story about my mother at 66. In My Mother at 66, poet captures the complex subtlety of human relationship in a lyric idioms in an example. Dear students, as you know that in this poem, Miss Kamala Das that has given the real story about her mother. As you know that Kamala Das, as she was born in Malabar, Kerala. Even she is recognized as one of the Indian foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhukirti. Some of her works in English includes the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories, Padmavati, the Harlots, and other stories, in addition to live for books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtlety of human relationship in lyrical idiom prose. My Mother at 66 is one of the examples in which I want to tell about the reality. When I was going with my mother at the airport, at that time she was sitting in the car and the glass was closed from the all sides of the car. But when she passed through the way and she was about to reach at the airport, she could not see, so she opened the window of the car. Again she saw that the little trees that were forwarding, that were springing behind, the little children that were coming out from their house with happiness. But she has become young, so she has forgotten about all kinds of things like those happiness which she used to spend in her childhood. Again, Kamala Das has given the reality of her mother that when she was sitting beside her in the car, so she saw that she was dozing, her mouth was opened, and her face that looked like the ashes of a corpus. So an idea came to her mind. She felt of herself very sad. Again she saw that perhaps she is feeling about her oldness. She was as old as she felt about herself. But after reaching
after reaching to Cochin means the place of airport. So after reaching there, Kamala Das expressed of her deep affection before her mother died. And when she said such a kind of word, कि see you Amma, on hearing such word, she felt of herself very gracious and she smiled. Okay dear students, हम आपको आज क्लास 12 फ्लेमिंगो से फर्स्ट पोएम पढ़ाने जा रहे हैं। तो माई पोएम है माई मदर एट 66। हम आपको लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लिखा क्या कि ड्राइव मी फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मेरी दादी माँ अर्थात मैं ड्राइविंग कमलवता जा रही थी, कैसे, कार चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अगले दिन पिछले शुक्रवार को। तो मैं पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही थी। तो ऐसा मैंने देखा, क्या देखा? ऐसा मैं देखा माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज का मतलब होता है झपकी लेना, वह झपकी ले रही थी। ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है मुर्दे की तरह, एसन का मतलब होता है काला पड़ जाना। और हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, उनका जो चेहरा था मुर्दे के समान, ठीक है, मुर्दे के समान अर्थात लाश के समान काला पड़ा हुआ था। तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो तो मैंने महसूस किया, क्या, विथ पेन, बड़े दर्द के साथ। तो मैंने दर्द के साथ महसूस किया, क्या महसूस किया? दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उतना ही बूढ़ी हो गई थी जितना कि वह दिखती थी। ओके, बट सून, लेकिन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, वह जो विचार कर रही थी, जो सोच रही थी, वह उन विचारों को दूर कर दी। एंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और तब उन्होंने क्या किया? अपने कार के दरवाजे को ओपन किया, खिड़की को ओपन किया, शीशे के नीचे गिराया। और लुक्ड आउट ऑफ यंग, वह छोटे छोटे ट्री, पेड़ों को स्प्रिंटिंग, पीछे की तरफ दौड़ते हुए देखी। अर्थात आप जानते हैं जब आप किसी ट्रेन से, बस से, कार से यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय जब बस या कार या ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही हो, हाई स्पीड में, और जैसे आप खिड़की से होकर बाहर झांकते हैं तो आपको छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वह पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। तो दादी माँ ने उन्हीं का वर्णन किया है, वो जो छोटे छोटे पौधे स्प्रिंटिंग पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। मैरी चिल्ड्रेन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर हाउस, जो मैरी चिल्ड्रेन थे, जो खुशी से, प्रसन्नता के साथ जो बच्चे थे, स्पिलिंग आउट देयर हाउस, वे अपने घर के बाहर स्पिलिंग का मतलब कूदना, छटकना, ठीक है, घूमना, वे बाहर घूम रहे थे, दौड़ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब हम लोग एक एयरपोर्ट पहुँचे तो सिक्योरिटी के चेक होने के बाद, वहाँ की जो सिक्योरिटी थी वह चेकिंग कर रही थी। चेक होने के बाद हम लोग क्या किए? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, तो मेरी जो दादी माँ थी वह कुछ गज की या कुछ दूर पे जाकर क्या होती हैं? खड़ी हो जाती हैं। और जब खड़ी हो जाती हैं तो मेरे अंदर एक भावना आती है। जैसे वह खड़ी होती हैं तो आई लुक्ड हर अगेन, मैंने उन्हें पुनः देखा। क्या देखा? मैंने उन्हें यही देखा कि वैन, उनका जो चेहरा था वह कमज़ोर लग रहा था, पैल, पीलापन छाया हुआ था। एज ए लेट विंटर मॉर्निंग, और वह प्रातःकाल के सर्दियों के समय में, और मून का मतलब होता है चंद्रमा की तरह। तो जब ठंडक के समय में देखिएगा, जब प्रातःकाल के समय चंद्रमा दिखाई देता है तो हल्के हल्के धुंधला और कांपता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से मेरी माँ का भी चेहरा कैसा था? माने वह सर्दी की चाँद के समान था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, उनको अपने आप को बहुत बूढ़ापन महसूस हुआ। फेमिलियर एज, वो उस पुराने दर्द को महसूस की। माई चाइल्डहुड फियर,
मेरे बचपन के डर की महसूस की, लेकिन मैंने क्या किया, बट ऑल आई सेड वाज, मैंने ही कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा हम आपसे फिर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात जल्द ही होगी, है ना। जैसे यह बात कही तो सो ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैं तो मुस्कुराई, स्माइल मुस्कुराई एंड स्माइल, और मैं क्या की, मुस्कुराई। तो देखिए द पोएट्रेस हैज़ गिवन द रियलिटी ऑफ हर मदर, ठीक है। अब बच्चों अब इसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज पोएट्री डिवाइस। पोएट्री डिवाइस क्या है, ध्यान दीजिएगा, पोएट्री डिवाइस क्या है। तो एक होता है पोएट्री डिवाइस में, खूब ध्यान समझिएगा, पोएट्री डिवाइस में एक बात आती है फिगर ऑफ स्पीच। तो डियर देखो, फ्रॉम ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। तो अब इस पोएम में हमें ये देखना है, पोएम में हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। पोएम ये देखना हमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए एक चीज़ होता है, पोएम की बात कर रहे हैं, एक होता है इंजॉयमेंट। अब इंजॉयमेंट क्या होता है, ध्यान समझो। इंजॉयमेंट का मतलब होता है, ओके, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट का मतलब होता है कि द पोएम विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड ends without full stop or any question mark, any punctuation, any punctuation। जब कोई भी पोएम की पहली लाइन से लेकर के दूसरी तीसरी या जो भी लाइनें हो बिना किसी पंचुएशन के समाप्त होती है, उसको एंजॉयमेंट कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जान जाओ, व्हाट इज एंजॉयमेंट, देखेंगे इट इज द फिगर ऑफ स्पीच, it is a figure of speech in which the poem ends out without a punctuation is called enjoyment, okay। तो आप जान गए, जैसे देखिए ड्राइविंग से लेकर के और फ्राइडे तक आपका एक पोएम लाइन है, दो लाइन, लेकिन कहीं फुल स्टॉप नहीं है, उसी को हम इंजॉयमेंट बोलते हैं, ओके डियर। अब जो दूसरी बात है, दूसरी बात जो होती है एजोनेंस, एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस का मतलब देखिए कि when the any line of the poem, when the any line of the poem starts with the same consonant that is any part of the word in any place। जब किसी भी लाइन में, किसी भी लाइन में कोई भी कॉन्सोनेंट एक समान आए, चाहे बीच में, चाहे फर्स्ट, चाहे अंत में, हर वर्डों में अगर एक कॉन्सोनेंट है सेम, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, चलिए फर्स्ट लाइन में देखिए कहीं मिल रहा है, नहीं, हाँ फर्स्ट लाइन मिला। तो फर्स्ट लाइन देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स से, तो ड्राइविंग देखिए आर मिला, ड्राइविंग आर, वहाँ फ्रॉम में एफ के बाद आर है, पेरेंट्स में पी और ए के बाद आर है, देखिए आर आर 3 बार आया है, तो इसको हम एजोनेंस बोलते हैं। अगर सेम कॉन्सोनेंट्स आर यूज्ड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ड इन द पोएम्स ऑफ द लाइन, ठीक है, एनी प्लेसेज दैट इज कॉल्ड एसोनेंस, एजोनेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं अभी जो बताया एजोनेंस, एजोनेंस का मतलब होता है, आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मी, बट माई टॉपिक दैट है मिसलीड टू। तो एजोनेंस मीन्स होता है कि व्हेन एनी पार्ट ऑफ द वर्ड दैट स्टार्ट द सेम वावेल इन एनी पार्ट ऑफ द प्लेसेज, यदि किसी भी लाइन में सेम वावेल समान रूप से आते हैं उसको एजोनेंस बोलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो चलिए देखिए सेकेंड लाइन दिया है होम टू कोचिंग लास्ट दिया है, तो होम में देखिए एस के बाद ओ आया है, कोचिंग में सी के बाद ओ आया है, फिर उसके नीचे जो मॉर्निंग में ओ आया है। तो अगर सेम वावेल आते हैं तो सेम वावेल को ही हम लोग कहते हैं एजोनेंस, ठीक है। अब जो अभी हमने पीछे बोल दिया वो होता है कॉन्सोनेंस को होते हैं। कॉन्सोनेंस में क्या आता है कि व्हेन एवरी कॉन्सोनेंट दैट यूजेज इन एवरी लाइन एनी पार्ट ऑफ द प्लेसेज, एनी पार्ट ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट एक ही रूप के आते हैं तो उसको एजोनेंस, उसको जो है कॉन्सोनेंस कहते हैं। जैसे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स है, ठीक है, तो ड्राइविंग में आर है, फ्रॉम में आर है, देखो पेरेंट में आर है, कहीं भी आया है,
तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्सोनेंट्स। ओके, एंजाइमेंट जान गए, कॉन्सोनेंट जान गए। अब तीसरा जो होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, अब एलिट्रेशन क्या होता है कि व्हेन द कॉन्सोनेंट यूज्ड, व्हेन द सेम कॉन्सोनेंट यूज इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ड एज फर्स्ट, जब किसी भी वर्ड में सेम कॉन्सोनेंट सबसे पहले आ जाए, हमेशा उसी कॉन्सोनेंट से उस लाइन की शुरुआत होती है, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ओके डियर, एलिट्रेशन क्या हुआ, जब किसी भी लाइन में जब सेम कॉन्सोनेंट आते हैं तो उन्हें एलिट्रेशन कहा जाता है। ओके, अब जैसे देखिए आप में दिया है, आज ये नीचे थोड़ा सा, हाँ नीचे देखिए बट के बाद लिखा ना आई, देखो सेड, सी, सून, तीन बात है, सेड, सी और सून। देखिए यहाँ भी स है, यहाँ भी स है और यहाँ भी स है। तो जब तीनों कॉन्सोनेंट समान आते हैं और उसी से वो वर्ड स्टार्ट होता है तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, एलिट्रेशन। ओके, अब इसके बाद देखिए एलिट्रेशन के बाद होता है रेपिटेशन। अब रिपीटिशन क्या होता है, रिपीटिशन देखिए कि व्हेन द ओनली वन वर्ड आर आल्सो यूज अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिपीटिशन। ओके, अब देखिए कौन सा ऐसा लाइन है जिसमें एक ही वर्ड बार बार यूज हुआ है, तो आज ये देखिए स्माइल एंड स्माइल, स्माइल स्माइल स्माइल, तो सेम वर्ड यूज अगेन एंड अगेन इन द सेंटेंस या इन द लाइन, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। ओके, अब अगला बात जो होती है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब व्हाट इज एनाफोरा, एनाफोरा द मीन्स ऑफ कि व्हेन सेम वर्ड यूज्ड इन द पोएम, व्हेन सेम वर्ड यूज्ड इन द पोएम एंड स्टार्ट फ्रॉम दैट वर्ड टू द सेकेंड लाइन, अगर वही वर्ड पहली लाइन से शुरू हो, वही वर्ड सेकेंड लाइन से शुरू हो, तो समझ जाइएगा उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। तो हम लोग देखते हैं इस पोएम में कहीं एनाफोरा मिलता है, तो संभवतः हमें लगता है यहाँ पर एनाफोरा का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो एनाफोरा भी जान गए आप। अब आज ये एक चीज़ दिया है यहाँ पर, कंपैरिजन किया है। डियर ध्यान दे देंगे, दिया हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ कॉर्पस, मिला हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ कॉर्पस। अब इसकी बात है, जरा ध्यान दो, एक कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आएगा, वह है सिमिली। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिमिली? सिमिली, as you know that it is a figure of speech which comparison between two opposite things, but comparison word are given, कौन, so, like, as, then। ओके, तो तुलना करिए लेकिन सेम तुलना वाला शब्द न हो, सब के सब अपोजिट हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, सिमिली। तो आइए आपके पोएम एक मिलता है सिमिली का परिभाषा। एग्जाम्पल, हर फेस ऐसन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस, उसका चेहरा किसके समान था, मुर्दे के समान क्या हो गया, देखिए काला हो गया। तो चेहरे की तुलना किससे की गई है, मुर्दे से की गई है ना, तो इसको हम सिमिली बोलते हैं। ओके, अब आइए इसके बाद एक आपको और मिलता है पोएट्री डिवाइस, वह है चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम। बच्चे जो छलकते हुए, छलकता मतलब खुशियों से झूमते हुए जो घर से बाहर निकल रहे थे, उसी को अब तुलना किया गया है, वह हमारा पोएट्री डिवाइस है पर्सनिफिकेशन। अब व्हाट डू यू नो अबाउट पर्सनिफिकेशन? तो पर्सनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नॉन लिविंग थिंग्स एज एक्ट ऑफ लिविंग थिंग, जिसमें कोई निर्जीव चीज, नॉन लिविंग एक्ट या थिंग्स आर आइडिया एज एक्ट ऑफ लिविंग, कोई निर्जीव बात या विचार जो सजीव का काम करती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, पर्सनिफिकेशन। अब जैसे यहाँ पर एक दिया है कि लिखा है कि चिल्ड्रेन स्पीलिंग, मैरिड चिल्ड्रेन स्पीलिंग, बच्चे कैसे थे, खुश थे, खुशी दिखाई नहीं देती है लेकिन एक्ट ऑफ लिविंग काम करती है। जैसे मैं कह दूँ एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, डियर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो टीचर कौन होता है, अनुभव होता है, टीचर हम नहीं है, टीचर हमारा अनुभव है। ओके, अब समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। और एक मिनट और पढ़ लो, तो आपको हो गया पर्सनिफिकेशन। जैसे कह दें द डोर ऑफ ऑनेस्टी नॉक्स बट वंस,
अवसर का दरवाज़ा बार बार नहीं, केवल एक बार खटखटाता है। अवसर क्या है? नॉन लिविंग, बट इट इज द एक्ट ऑफ लिविंग, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। ठीक है, दिख रहे हैं, देखें फोटो चाहिए बंद करें।